Okay, so we can wait for 4 to 5 minutes. Let's other to join. Then we can start the live session. Okay, we can wait for 4 to 5 minutes.
इसमें तो लोग Kindly mute your mic. Who is this unverified? What? Okay, Arnav, I'm checking that problem. Wait a minute.
Okay, so can you listen? Can you listen me, everyone? Okay. So second thing, second, I think today is the second lab. So actually, I want to take the Viva also, but sir told that based on the two experiment, take the Viva. Okay. So I can't take today. So in the next class, we have the Viva. Okay. So today we are going to cover about the NAV base. Okay. So आज हम लोग NAV base के बारे में करेंगे. ठीक है. NAV base, sir has, I think, sir has taught you about the NAV base. So we will see what are the different things are there in NAV base. Okay. So I already uploaded the file in the drive. We will go through that. What the things are there? Wait for 2 minutes. 2 minutes. Just let me see the. No, today, Arnab, today is not Viva. Tomorrow, in the next class, we have the on the KNN and another one that is the NIA base. On these two topics, the Viva will be there. Today, I think no Viva will be there. Okay. Because I asked the sir, but sir told me that complete the two experiment, then only you can take the Viva. So that is the MCQ questions. Okay, so don't worry about that. So we can start before going to the. Wait a minute. Let me log into some things. So when we talk about the NAV base, first of all, I will start with the basics. Then yes.
Obviously, Mrityunjay, if its marks will be not added, then why should I take? ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि मैंने भाईवा लूंगा तो उसका मार्क्स जुड़ेगा ही जुड़ेगा। बिना मार्क्स का भाईवा दोगे? मृत्युंजय, आई एम आस्किंग यू कि अगर मैं बोलूं कि मार्क्स नहीं है तो आप भाईवा दोगे ही नहीं। So that is simple MCQ question. It is 10 minutes, before 10 minutes, okay, 10 मिनट आपका MCQ होगा, okay. ऐसा नहीं कि एक 1 to 1 लिया जाएगा, that is the MCQ question, just to revise, okay. So here we can see when we are talking about the NAV base, I think sir has already covered it. So NAV base, so it is a family of, when we talk about the, yeah, yes Shivam, like that only. So it is a family of probabilistic classifier. Probabilistic classifier. Okay. And it is based on, always try to understand, it is based on Bayes theorem. Bayes theorem. So when we talk about the Bayes theorem, can anyone tell what is the formula for that Bayes theorem? One is the Bayes theorem and another one, what is that? With? Sir, independent. Independent, okay, yes. And with naive assumption. ठीक है, अब जब हम इस बायस थ्योरम की फॉर्मूला देखेंगे, whenever we want to see the formula of this is what, that is C of x is equal to P into PC by Px. यही हमारा बायस थ्योरम होता है। Okay, now when we talk about PCX, what is that? That is the posterior probability. Can you tell me what is the meaning of posterior probability? What do you mean of that? Can anyone tell what is the meaning of posterior probability? Means that probability of class C given features of set X. ये जो फीचर सेट ऑफ X है, इसमें क्लास C की प्रोबेबिलिटी कितनी है? Okay, now another one, that is the PXC. This is known as likelihood. ये सब टर्म आपको याद रखना है क्योंकि यही फॉर्मूला आपको यूज करना है पाइथन कोडिंग में. What is the meaning of this? Probability of features X given in class C. What is PC? What do you mean by PC? Can anyone tell? That is prior probability. ठीक है, prior probability of the class C. And what is PX? That is the evidence. Okay. तो ये चार टर्म आपको याद रखना है. That is the Bayes theorem. Okay. Now I always told you that naive Bayes is a family of probabilistic classifier based on the Bayes theorem with the naive assumption. Okay, means there are some assumptions are there. Okay, what is the assumption? Can anyone tell what is the assumption of that? Sir, PXI independent to each other. Yes, means whatever the features are there, they are assumed to be independent. So here only I can.
So naive assumption states that features x1, x2, xn are to be independent. So we can say that Px bar C is equal to Px1 C, Px2 C dash 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 Pxn bar C. Okay. So the formulation, this formulation is that Pcx, that is Pc summation of I is equal to 1 to n Pxi by C. यही चीज आपको याद रखना है. ठीक है. तो वही चीज हम लोगों ने अभी क्या किया था, यहाँ पे भी देखोगे, अभी हमने कोडिंग जो करूंगा यही चीज आपको याद. देखिए, so we can say naive Bayes, the Bayes classifier is a probabilistic classifier based on applying the Bayes theorem with the strong. Naive means what? A strong independent assumption between the features. Okay, so this is the Bayes theorem, that PAB, that is a PBA into PA by PB, and in our case, what is that? X is what? That is the X is the feature vectors and Y is the target value. So assume that features are mutually independent. Finally, we simplify it and we have to find the different, that is the conditional probability and prior probability. Okay, are you clear with this? Now we see the code. Okay, यहाँ पे हम कोड देखेंगे. ये जो कोड है, ये कोड को हम लोग देखेंगे. तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, एक numpy लिया, क्लास नया बेस स्टार्ट किया. इसमें हमने क्या किया, n सैंपल लिया, x फीचर्स लिया. Okay, whatever it is, kindly go through this code once. Everyone, kindly go through this code.
Okay, so I can explain this code, what is happening here. So what we are doing here, that this fit function. So this function trains the classifier by computing mean is there, and another one is the variance is there, and prior probability of each class. Are you getting that? This function, this fit function trains the classifier by computing the mean, variance, and prior probability of each class. Okay, what is the fun? What is this? What it self dot mean keeps? What is this? Can anyone tell? Anyone who can tell about that? So when we talk about this one here, this is self dot underscore mean. It keeps what? Store the mean value for each feature within the each class. Okay. Each Sir, I have a features. question. Yeah, tell me what. सर आपने Hello? यहाँ पे जो वेरिएबल सेल्फ डॉट अंडर, हाँ हेलो, एम आई ऑडिबल सर? Yeah, you can tell me. सर आपने सेल्फ डॉट अंडरस्कोर मीन वेरिएबल में एनपी डॉट जीरोज करके जो यूज किया है, इससे मीन कैसे स्टोर हो रहा है इसमें? किसमें? ये जो लाइन है ना, सेल्फ डॉट मीन हाँ इक्वल टू एनपी डॉट जीरो, उसमें वैल्यू असाइन किया है ना आपने एन क्लासेस एंड एन फीचर्स का। हाँ, तो एन क्लासेस का एन, तो वो सर इसका ये बताओ क्या कहते हैं, एनपी डॉट जीरो का क्या फंक्शन होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द सर फंक्शन ऑफ ये दैट? मतलब एक तरफ से सर ये एरे में जीरो वैल्यू पुट करता है मैट्रिक्स में। हाँ, जीरो करता है ना? यस हेलो, सर। हाँ, तो यहाँ पे देखो, जब हाँ ये इसके नीचे वाले में लूप में देखो, नीचे वाले में जब idx डॉट इनोमिनेटेड जाएगा, ओके सर, क्लियर सर। वो मीन लिखेगा ना। यू गॉट द पॉइंट? क्या दिक्कत हो रही है? क्या समझने में दिक्कत हो रही है? वेरिएबल का नाम रख रहे हैं ना, या फिर? हाँ, पहले जो एस एस सेल्फ डॉट मीन था, उसकी वैल्यू को सबको पहले जीरो कर दे रहे हैं। बात समझे कि नहीं? हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले समझो, यहाँ पे मैं दिखा कोड रहा हूँ। लगाया है। हाँ, जैसे नंबर ऑफ क्लास मान लो, हम बात करते हैं, हम अगर एक बात कर देते हैं कि हमारे पास एन क्लास, सॉरी, एन क्लास जो है, एन क्लास जो है वो हमारे पास 3 है, और एन फीचर्स जो है हमारे पास 4 है। ठीक है, तो ये मेमोरी में क्या करेगा, एक स्पेस बनाएगा। क्या स्पेस बनाएगा? इस तरह का मैट्रिक्स बनाएगा, दैट इज 0.0.0.0.0, फिर उसके बाद दूसरा 0.0.0.0, फिर तीसरा 0.0.0.0। अंडरस्टूड? अब ये क्या करेगा, यस और सर। और उसके बाद फिर उसको अपडेट करेगा विद द एक्चुअल मीन। समझे? यहाँ पे हम पहले जो लिस्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा जो बन रहा है उसे हम क्या कर रहे हैं, each class, each row represents a class and each column represents a features. Initially all the values are to be 0, but they will update with the actual mean during the training. समझ में आया? यस सर, क्लियर सर। ठीक है, क्योंकि हम उसे कॉल कर रहे हैं ना, हमेशा याद रखो कि हम लोग उसको कॉल करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। ये क्या कर रहा है,
Can anyone tell what is the role of this? इसका क्या रोल है? enumerate का क्या करता है? enumerate function, what is the function of enumerate function? सर इनमरेट जो है दो वैल्यू को लेके चलता है, जैसे की एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को। Yes, that is only. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि लूप ऑन द ईच क्लास कर रहे हैं। ये जो पहला स्टेप है इसमें हम क्या कर रहे हैं, लूप फॉर द ईच क्लास। एक मिनट, तो यहाँ पे देखो ये पार्ट का देखना, ये पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द एल्गोरिथम फॉर दिस। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द एल्गोरिथम फॉर दिस पार्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग लूप ओवर ईच क्लास, ये पहला स्टेप है, और लूप लगा के उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट डाटा points belongs to class C, belongs to class, okay, whichever class it is. Then third one, what we are doing, what is we are doing that, ये class C में हो गया, then compute the mean, ठीक है, that is the third line. Fourth line क्या कर रहे हैं, compute the variance, compute the variance, ठीक है, and last line, what is the last line, fifth one, that is the compute prior probability। समझ गया, यही 4 स्टेप्स यहाँ पे हो रहे हैं। Are you getting this or not, everyone? Everyone, are you getting this? क्या क्या यहाँ पे हो रहा है? सर प्रायर प्रोबेबिलिटी मींस प्रोबेबिलिटी बाय गिवन सी, यही ना? हाँ यही, that is a probability given by C। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, we are predicting it, as predict dot self, so iterate each sample x and call underscore predict to determine the class, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दैट, अनदर वन, दैट इज द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ये जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है इसे हम कॉल करेंगे, ओके। अब पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी में क्या हो रहा है, व्हाट ईच लाइन इज डूइंग, कैन एनीवन टेल? ये हो गया हमारा फर्स्ट वन, दिस इज डूइंग फॉर द प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे, कैन एनीवन टेल दैट? अब ये वाला सेक्शन देखो, ये जो है कैलकुलेट कर रहे हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप, दैट इज द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइट्रेशन करेंगे, दैट इज अ फॉर लूप लगा के, आइट्रेट ओवर क्लासेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, लॉग से लॉग ऑफ प्रायर प्रोबेबिलिटी, then third one, that is the log likelihood, and the last one what we are doing using the append करके हम क्या कर रहे हैं, what do you append से हम क्या कर रहे हैं, that is the prior और likelihood को ऐड कर देना। उसके बाद हम लोग रिटर्न क्या करते हैं, व्हाट आर द रिटर्निंग, वी आर रिटर्निंग द फिफ्थ वन, दैट इज द रिटर्न हाईएस्ट पोस्टीरियर,
ओके, आर यू क्लियर विद दिस पार्ट? ये पार्ट समझ गया? फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या निकाला, प्रायर निकाला। दूसरा पार्ट में हम लोगों ने पोस्टीरियर निकाला। तीसरा हमें क्या करना है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है, दैट इज द पीडीएफ। Okay, so here we can see whenever we are talking about the PDF probability density function, तो probability density function के लिए हम क्या करते हैं, that is the, अगर हम इसमें यहाँ देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, मीन of each class and features, then variance, that is the sigma square, इसका निकालेंगे, that is the variance of the given class and features, ये भी गिवन क्लास का निकालेंगे, दिस इज ऑल्सो गिवन क्लास। अब ये जो प्रॉब्लम है एनपी डॉट क्लिप, ओके, दिस इज a स्क्वायर पार्ट, ओके, दिस इज रिटर्निंग द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। समझ गया ये चीज एवरीवन? आर यू क्लियर विद दिस और नॉट? जिसे कोई दिक्कत हो रहा है पूछिए, एवरीवन। सर ये पोस्टेरियस प्रोबेबिलिटी जो आपने अभी बताया वो मतलब कैसे निकालते हैं, ये सर ने हम लोगों को नहीं बताया था, मतलब पहले नहीं बेच। इसका डायरेक्ट फार्मूला है ना, फार्मूला लगाएंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया कि देखो नया बेस के लिए अगर तुम चाहो तो एसके लर्न से डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, या दूसरा तुम खुद अपना डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे जब तुम बात करो, ये जो जब भी हम बात करें पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है, फार्मूला में सेट कर दो। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमें सेट करना है और कुछ नहीं करना है। चलो मैं उसका कैलकुलेशन बता दूं कैसे निकलता है। यस सर। ओके, बेटा इसलिए मैं बोला था नंपाई आपको अच्छा से करने के लिए, नंपाई अगर आप अच्छा से कर लेते तो अभी आप इजीली कर सकते थे। क्योंकि चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। देखो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जो है, जब भी हम बात करें तो हम फाइंड करते हैं, दैट इज द पी सी बार एक्स इजकल टू पी एक्स बार सी पी सी बाय पी टू द एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें पी सी क्या है, दैट इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पी एक्स बाई सी क्या है, दैट इज द लाइक्लीहुड। ठीक है,
Px क्या है? दैट इज द एविडेंस। ये भी मैंने तुरंत बताया आपको। ठीक है, तो जब हम बात करें प्रायर प्रोबेबिलिटी की, जब हम व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द पीसीएस, तो पीसीएस का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ सैंपल्स in class C by total number of samples, ठीक है। आर यू क्लियर विद दिस? पहला हमारा क्या करना पड़ेगा? प्रायर प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अब हमारे लाइक्लीहुड निकालना है। तो लाइक्लीहुड का क्या होगा फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द लाइक्लीहुड? PXIC, that is the Gaussian transformation, Gaussian distribution, that is 1/2। उसका क्या फॉर्मूला था? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? गॉसियन का कोई फॉर्मूला याद है किसी को? गॉसियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इट इज 2 पाई वेरिएंस e टू द पावर माइनस xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाई 2x²। ये है। तो यहाँ पे हमें वेरिएंस चाहिए, ये वेरिएंस हो गया। ये म्यू जो है, ये म्यू हमारा मीन हो गया। सो दैट्स व्हाई मीन एंड वेरिएंस इज नीडेड। ओके, दिस इज व्हाट। आर यू क्लियर विद दिस? चलो मैं इसको फिर से Yes, आपको sir. दिखा रहा हूँ। मैं इसको, ये थोड़ा मैथमेटिक्स है, आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। सर पहला जो थ्योरम है वो तो बेस थ्योरम ही है ना? हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं कि इसमें देखो, बेस थ्योरम से ही मेरा ये जो है बी सी बाय एक्स इक्वल टू पी एक्स सी पी सी बाई पी एक्स निकला। ये जो यही तो मेरा क्या है? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है ना। दिस इज Yes, sir. ओनली नोन एज, सॉरी, दिस इज ओनली नोन एज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। यही तो मेनली हम निकाल रहे हैं, समझे? Yes, sir. नाम के वजह से कंफ्यूजन हो गया था सर। हाँ, नाम को इसका। अब इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी? यहाँ पे इस टर्म का मतलब क्या है? कैन एनीवन टेल? सी बार एक्स, it is telling what the probability of class C, किसी पार्टिकुलर क्लास, जो क्लास C है, given features set x। ठीक है, अगर ये जो x है ये सेट ऑफ फीचर्स है, उसमें क्लास C की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक है, ये समझ गया? पहला चीज ये हो गया। दूसरा देखो, P x बार C क्या है? दिस इज लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? दैट इज द गॉसियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसका मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय लाइक्लीहुड? x बार c का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग x गिवन क्लास c। और नेक्स्ट वन, दैट इज द थर्ड वन, दैट इज द pc, दैट इज द प्रायर प्रोबेबिलिटी। है प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रायर प्रोबेबिलिटी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द प्रायर प्रोबेबिलिटी? पीसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल्स इन क्लास C by total number of samples। यही पीसी है। और px निकल गया, तो फोर्थ वन इज द px। अगर ये सब निकाल लेंगे तो हमारा पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा।
This is evidence. What do you mean by evidence? What do you mean by evidence? That is the total probability. Total probability of features set X. तो हम अभी देखेंगे ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रायर प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। अब हमको निकालना है व्हाट, दैट इज द पी एक्स आई बाई सी बार सी, जिसे हम क्या कहें, लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दैट इज द गॉसियन पीडीएफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/√2 पाई वेरिएंस इंटू e to the power minus x minus xi minus mu का होल स्क्वायर बाय 2 वेरिएंस स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा वेरिएंस, ये हो गया तुम्हारा मीन, और xi की जब बात करें तो ये हो गया हमारा फीचर्स वैल्यू। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। कोई दिक्कत है इसमें? एनीवन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? सो हियर वही चीज यहाँ पे हम कर रहे हैं, और फिर उसको हम क्या कर देना है, कॉल कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप लोग करो। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं देता हूं। एवरीवन कैन डू दैट? तो मान लो कि हमारे पास एक बाइनरी क्लासिफिकेशन है। प्रॉब्लम तो तुम लोग समझ जाओगे। एक बाइनरी क्लासिफिकेशन है। बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या होता है, दो ही क्लास होंगे, क्लास 0 एंड क्लास 1। टू फीचर्स हैं, मान लो हमारे पास टू फीचर्स हैं, दैट इज x1 एंड x2। ठीक है, अब ये हमारे पास टेबल है, मान लो। ये मान लो हमारे पास क्लास दिया हुआ है, दैट इज 0 एंड 1। ये x1 का मीन दिया हुआ है, और ये x1 का वेरिएंस दिया हुआ है। ये x2 का मीन दिया हुआ है, ये x3 x2 का वेरिएंस दिया हुआ है, और प्रायर दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रायर, दैट इज pc, दैट इज 0.6 0.4। ठीक है, ये आया 0.8, दैट इज 1.0 3.0 4.5 1.5 1.2 5.0 एंड 1.2। एक न्यू डाटा सेट आया। ठीक है, एक न्यू डाटा सेट आया, डाटा पॉइंट आया। ये न्यू डाटा पॉइंट की है, दैट इज x इज इक्वल टू 5.5 3.5। कैलकुलेट
calculate posterior probabilities of for both class निकालिए तो इसका एवरीवन कैलकुलेटेड everyone calculated यहाँ पे जो फाइनल पोस्टीरियर है वो लगाना दैट इज अ लॉग टू प्रिवेंट द अंडरफ्लो दैट इज लॉग पी सी ऑफ एक्स log p c of x is equal to p log p c plus summation of I is equal to 1 and log p x I bar c ये फॉर्मूला लगाना ये जो न्यू डाटा पॉइंट है वो किस क्लास का है क्लास 0 का है कि क्लास 1 का है दैट यू हैव टू फाइंड इट इस तरह के प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आएंगे anyone got the answer anyone okay do it आर यू क्लियर विद द प्रॉब्लम मैंने जो प्रॉब्लम बताया जो प्रॉब्लम समझाया वो समझ में आया अंतिम में आप ये फॉर्मूला लगाना दिस फॉर्मूला
log PCX is equal to log PC plus summation of log PXIC. किस क्लास का है? न्यू पॉइंट 5.5 and 3.5 which belongs to which class? Zero 0.19 आ रहा है and class 1 0.093. Anyone else? कोई और? Anyone? लॉग ठीक से निकाले आर्यन? चलो एक ये देख लेते हैं, ये वाला PCX, ये वाला पहले वैल्यू निकालते हैं. So it is so we are calculating P 5.5 as C0. इसमें x1 की वैल्यू कितनी है? What is the value of x1? 5.5. ठीक है, और मीन कितनी है? मीन हो गया तुम्हारा 5.0. This is a class 0. And what is the variance? Variance is 1.5. तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएं P 5.5 C0 क्लास 0 का, तो 1/√2 पाई वेरिएंस स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाई 2 वेरिएंस स्क्वायर.
तो यहाँ पे आता है 1/_2 इंटू पाई इंटू वेरियंस कितना है, वेरियंस है 1.5 e to the power minus x, मीन कितनी है, व्हाट इज द मीन, दैट इज 5.5 minus 5 का होल स्क्वायर बट 2 इंटू 1.5, इसका वैल्यू मुझे आएगा, लगता है इसका करेंगे, रुको मैं कैलकुलेटर से कट कर रहा हूँ, 2 इंटू 23.14 इंटू 1.5 अंडर रूट, so its value is 1/2.438 and into what is the value of this 5.5, this is exponential, that is 0. minus 0. exponential e minus 0.0833, so the value is coming 0.41. okay, it is coming 0.41. अब उसके बाद PCI का कितना है, व्हाट इज द PCI, PCI की जब बात करें 0.317, नहीं अभी PCI निकलेगा, PCI भी कितने निकाले आपने, क्लास 1 का अगर हम PCI देखें तो log PC नॉट, so log of 0.6, log of 0.6 कितना आता है, minus 0.51. Are you getting, everyone, are you understanding this? So kindly solve this problem. Okay, or if you want I can solve it. अगर आप चाहोगे तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं तो आप घर पे इसे सॉल्व कर लेना, मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ। इसे सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे वही किया हम लोगों ने, क्या किया, सबसे पहले मीन वेरिएंस निकाल लिया, उसके बाद प्रायर निकाल लिया, उसके बाद पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये रन हो गया। It will take time, some it will take little bit। तब तक हम इसका डाटा सेट डाउनलोड कर लें। सेम आइरिस डाटा पे ही है, it is working on the same iris data। so iris data set कौन सा है, ये वाला है, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करें, इसे अपलोड कर देते हैं और इसका पाथ हम बता देंगे। दिस इज द iris data set। ओके, अब हमने क्या किया, इसको डाटा लिया, स्प्लिट किया, ये देखिए 0.96 आया, इट इज कमिंग 0.96। okay, similarly by calling this nav base, that is the Gaussian nav we have called it, what is the output is coming, it is coming like this 0.96। okay, now what your role is that you have to do the multi-nominal nav bias, Bernoulli's nav bias, complement nav bias, you have to go through that। okay, are you clear that? मैंने ये आंसर गॉसियन से निकाला है, यू कैन सी दैट गॉसियन nav base, same thing you can perform on the multinomial nav base, Bernoulli nav base and complement nav base।
Mhm. So we can see next part, that is the lab session, what you have to do that. So lab session task you can see. दो डाटा सेट पे आपको ये काम करना है। ये सब आप एक पीडीएफ अपलोड करोगे जिसमें आपका ये सब चीज होनी चाहिए। आर यू गेटिंग दैट एवरीवन? मैं ये अपलोड कर देता हूँ इसमें। लैब 3 टास्क, सॉरी। lab 3 task, that is the 5th February 2025. You got the point, everyone? समझ में आ गया क्या करना है? आयरिस डाटा सेट और डायबिटिक डाटा सेट दोनों आपके पास है। डायबिटिक डाटा सेट यू कैन गेट इट फ्रॉम द ड्राइव यूजिंग द नैप बेस। You do these steps, okay, and upload the file. Let me share you the link where.
Okay. Lab 3 task, you can upload it. कोई कंफ्यूजन है किसी को? Anyone has any confusion is there? Okay, you complete the task.
सर मैंने सबमिट कर दिया है, मैं लीव कर सकता हूँ क्या? क्या बोल रहे हो ऋषिका, ऋषिकेश राज? सर मैंने सबमिट कर दिया है, मैं अब लीव कर सकता हूँ क्या? Just wait for 10 minutes, 10 to 20 minutes again. I will discuss one more point, okay? Okay, Rishikesh. Hello. हाँ सर, मैं यहीं ऑनलाइन। 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट के बाद मैं एक चीज डिस्कस करूंगा, उसके बाद तुम लीव कर देना, ठीक है? ओके सर, श्योर सर।
everyone kindly complete this task and upload it before today. Okay. Those who have not completed the task, kindly complete it and try to upload the file by 6 p.m. Okay. And kindly go through the regressions problems, that whatever I taught you in the today class, that is the regression problem, that is the linear regression, multiple regressions, what is the equation of the straight lines, how we have to calculate the slope. So all these things you should go through that. So on Friday, when we have the tutorial, in the tutorial we will carry linear regression only, the mathematics of regression part. ठीक है. और नया बेस में भी आपका एग्जाम में आप याद रखिए कि आपका इस पे प्रॉब्लम्स आएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे. It may be in the Qs also, numerical problem will come in the that also, in term or midterm exam, end term exams. So kindly go through that. It is too much important. Okay. Anyone has any more doubt? Is there anyone? किसी और कोई डाउट है? सर आपने मतलब आज जो भी मतलब थियोरेटिकल पार्ट बताया बोर्ड पे, वो वाला अगर स्लाइड अपलोड कर देते तो ज्यादा हेल्प होता सर. ठीक है, मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ. ठीक है, डोंट. ओके, जस्ट नाउ आई विल अपलोड. Okay, Rishikesh, I have uploaded it the drive. You can check it. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Kindly do the coding by yourself. Don't copy and paste others' code and upload it. Later you will face the problem. If you don't understand, okay, you go through the code, go through each line. What is the use of single line? Everything you go through that. Take your time, understand it, then try to execute yourself. Where which module will be used, that you should be aware of that. Just copying the others code and uploading, you will face the problem.
Okay, so can I close the recording part? Arnav, can I close the recording part? Yes, sir. Okay, so thank you. Thank you, sir.